अगर आप एक ऐसे रीडर हो जो रेगुलरली रीड करता है बट उसको लगता है फिर भी आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, राइट? तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। बाय प्रैक्टिसिंग मोर इज इन मेकिंग यू बेटर, इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं बाय रीडिंग मोर, बाय प्रैक्टिसिंग मोर। आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आप आरसी पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, बट फिर भी आप इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं एज अ रीडर, राइट? सो इसके कुछ की रीजंस हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट? पहली चीज, प्रैक्टिस विदाउट द राइट फीडबैक लूप इज जस्ट रेपिटेशन। सो अगर आप अपनी सेम ही चीज को बार बार करते जा रहे हो, और इसमें एक बहुत बड़ी चीज जो लोग करते हैं, विच इज वन वन very important thing with respect to reading, that a lot of people make this mistake, right? They keep reading the same kind of material, right? They keep referring to the same kind of material. For example, they might be referring to one particular newspaper publication, right? So क्या ये TOI है या टाइम्स ऑफ इंडिया है या द हिंदू है, एंड दे रिमेन स्टक to reading content from this one single source. Are these sources the problem in themselves? No, these sources are not the problem in themselves, right? But just reading a single type of source material, right? Similarly, right, you might be reading, say for example, romantic novels. You might be reading a lot, but you might just be reading romantic novels, or you might be reading fiction books for the longest period of time. And this is a personal example I can give you. uh, when I was around 17, 18, I started reading a lot of fiction thrillers, right? I was got into thrillers, and then I got into legal thrillers, and I went ahead and literally at that point of time, whichever John Grisham book was available, I read that. Got me accustomed to one kind of reading. Then I went ahead and read a lot of Jeffrey Archers. Then I went ahead and read Sidney Sheldon. So I could read these thrillers and read them with ease, right? All of a sudden, when I shifted or changed categories, even to do something as simple as going shifting to Dan Brown, right? Which had different references, which had a different type of reading, and then shifting to something which was far more complicated in the form of Atlas Shrugged or Fountainhead by Ayn Rand, I was completely blown away. Because why? Because at that point of time, I had been reading the same kind of materials, right? My brain was accustomed to reading thrillers and thrillers alone, right? And that is what I was obsessed over, right? Or in a way, that is where I had reached a plateau. I was not improving, I was not changing my reading habits as such, right? So without practicing, without the right feedback loop, without understanding where is it that you are going wrong, right, it will become a problem for you. And the second point is related, right? Volume creates confidence, not competence. So I read so many books during that period of time, right? But despite reading those books, I still could not read Ayn Rand, right? On the first attempt of Ayn Rand, I remember Fountainhead, when I read it for the first time, I quit. I could not complete it, or I could barely get through a few pages. Then subsequently reading a lot of different content, I understood that I was not probably going about it the right way. I started reading non-fiction, started reading essays, started with that content. And then when I picked it up again the second time around, I was far more comfortable. This would have been at an interval of about 2 to 3 years, right? When I had changed my reading appetite. Remember, my volume of reading, I started reading in class 3 or 4, right? That's when I started reading. The first set of books would be Enid Blyton's. Then I read a lot of Hardy Boys and Nancy Drews. Read a lot of those. Mostly Hardy Boys was the, like those detective novels. And then I went ahead and started reading Agatha Christie. And then the next version of that was going ahead and reading thrillers. So you can see that it was a gradual progression. I had done a lot of reading. I had created a huge volume of reading. Agatha Christie has so many books. Same with Sidney Sheldon, John Grisham, Jeffrey Archer. They have written so many books. There were so many books to pick from and read. But it was all, it was a similar experience, right? I had created a volume, but I had not created the depth of reference. Why do you need that depth of reference, right? Why do you need that diversity? वो चाहिए क्यों अलग अलग चीजें पढ़ने के लिए? यार सिंपल सी बात है, आपकी रीडिंग आपके नॉलेज का फैक्टर है। आपको क्या क्या दुनिया में कितनी चीज़ें पता है। जब आप रीड करते हो, जैसे हमने पिछले एक वीडियो में भी बात करी थी कि हमारा ब्रेन प्रिडिक्ट करता है। हमारे अंडरस्टैंडिंग के पैटर्न्स ही ऐसे डेवलप होते हैं कि हमने चीज़ें पहले पढ़ी होती है, हमारे सबकॉन्शियस में कंटेंट होता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं। सो अगर मैंने फिलॉसफी की बुक्स बहुत सारा पढ़ी हुई है, तो जब मैं फिलॉसफी का कंटेंट पढ़ूंगा, मेरा ब्रेन प्रिडिक्ट कर पाएगा कि आगे क्या आने वाला है, और मैं उस टेक्स्ट के साथ अनकंफर्टेबल रहूंगा। जब मैं वो फिलॉसफी का कंटेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी कुछ वैसा पढ़ा ही नहीं है,
मेरे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है उसको समझने के लिए, जब मैं उसको पढ़ूंगा मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा, राइट। सो वो नॉलेज का रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है, राइट। एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है, आपको अलाउ करता है प्रिडिक्ट करने के लिए टेक्स्ट में क्या होगा, राइट। और रीडिंग एक्चुअली इन अ वे हम प्रिडिक्ट भी करते हैं, राइट। हम आगे आने वाले वर्ड्स क्या होंगे, इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, हमारा ब्रेन चल रहा होता है कंटिन्यूअसली। तो अपनी ब्रेन के उस प्रोसेस को ईजी, उसको सूटेबली मोल्ड करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी रीडिंग डाइवर्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। रीडलाइट.इन पे मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ बाय प्रोवाइडिंग यू कंटेंट आर्टिकल्स फ्रॉम 60 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। सो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ो, एक एक करके अपने आप को चैलेंज करो इन सब्जेक्ट्स पे पढ़ने के लिए। जब इन सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे तब इनकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ेगी यू विल बिकम अ बेटर लर्नर, राइट। और ये सेम चीज़ मेरा पार्ट है अल्टीमेट रीडिंग कोर्स का भी, जहाँ पे टॉपिक वाइज रीडिंग तुम्हें कराई जाएगी, टॉपिक वाइज चीज़ें तुम्हें समझाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी। तुम्हें पॉलिटिक्स भी पढ़ाई जाएगी, क्यों, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि ये पढ़ने कैसे हैं आर्टिकल्स। जब ये समझ आएगा तभी, जब फ्रेमवर्क होगा तभी तो समझ पाओगे, अगर फ्रेमवर्क ही नहीं है तो समझोगे कैसे, राइट। सो वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सी चीज़ है। नेक्स्ट, व्हाट प्रोडक्टिव रीडिंग एक्चुअली लुक्स लाइक. Productive reading involves, right? So in order to be productive with your reading skills, A, you need to ensure that you read diverse set of things, right? But इसमें भी एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। नॉन रीडर्स, रिमेंबर इस वीडियो को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने क्या बात करी थी कि आप रीडिंग कर रहे हो पर आप इंप्रूव नहीं कर रहे, आपको लग नहीं रहा आप नए स्किल सीख रहे हो। तो ये वीडियो नॉन रीडर्स के लिए नहीं है। नॉन रीडर्स को तो पहले वहां से स्टार्ट करना है जो उनको अच्छा लगता है पढ़ने में, राइट। यू हैव टू गो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लाइक, यू स्टार्ट रीडिंग दैट एंड यू रीड दैट अ लॉट। पहले तो तुम सिटिंग बनाने की, द एबिलिटी टू सिट एंड रीड, राइट, वो डेवलप करोगे। अब वो डेवलप होगी, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक डाइवर्स सेट ऑफ थिंग्स, डाइवर्स सेट ऑफ टॉपिक्स को पढ़ना है, अपने आप को चैलेंज करना है कि कंफर्ट जोन में से बाहर निकलो, राइट। यही ना हो सेम टाइप की चीज़ें, सेम लेवल की चीज़ें बार बार पढ़ते रहो, तो उससे तुम्हारा लेवल ही नहीं होगा, तुम्हारा नए टाइप के कंटेंट को एक्सपोजर ही नहीं होगा। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, डाइवर्स सेट ऑफ थिंग्स पढ़ो, और एनालिसिस में एक्टिव रीडिंग स्टार्ट करो, राइट। पढ़ते वक्त जब ये नई टाइप की चीज़ें पढ़ोगे, राइट, तो चैलेंज आने वाला है, समझ नहीं आएगा कंटेंट से। तो तब क्या करोगे, तब तुम टेक्स्ट से पूछोगे क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या स्टाइल है, क्या टोन है। कंटिन्यूसली टेक्स्ट के साथ एंगेज करते जाओ। जब एंगेज करोगे तो टेक्स्ट ज़्यादा समझोगे, जब ज़्यादा समझोगे तो कॉम्प्रिहेंशन अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगा। सो डाइवर्सिटी और एक्टिव रीडिंग तुम्हारी दो की थिंग्स है विच कैन पुश यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड टेक यू टू द एब्सोल्यूट नेक्स्ट लेवल विद रिस्पेक्ट टू रीडिंग। अगर ऐसी सारी चीज़ें आप मेरे साथ पर्सनली करना चाहते हैं तो हमारा अल्टीमेट रीडिंग कोर्स ज्वाइन करिए। You'll get reading material from my side, you'll get articles, you'll get content, and I will personally push you to become a better reader. But important चीज़ें क्या है, डाइवर्सिटी और एक्टिव रीडिंग को दिमाग में रखोगे और इनको अप्लाई करके क्या बनोगे तुम, एक बेटर रीडर।